لیکن ان ڈائریکٹر سے ملنا ہو اگر جو سی ڈی اے میں جن کے دفتروں پہ 2018 کے 2019 کے نقشوں ٹیبلوں سے بھرے پڑے ہیں، اگر ان کو 6 مہینے بھی میں آپ کو ٹائم نہیں لے کے دے سکتا تو کہاں پرائم منسٹر کا پیکج یہ کامیاب ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پیکج جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا؟ سکسیسفل پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے، اور یہاں پہ وہی بیوروکریسی بیٹھی ہے، وہی فیصل نعیم بیٹھا ہے، وہی خالد آصف بیٹھا ہے، وہی ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں جنہوں نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ لوگوں کے کام نہیں کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب آج کنور موئی صاحب کو ہم مس کر رہے ہیں۔ بہرحال غلام یاسین صاحب، بگیڑی صاحب، راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ صبور صاحب، جناب ہمارے اسلام آباد کے چیمبر کے پریزیڈنٹ احمد صاحب، طاہر عباسی صاحب، اور میرے جتنے بھی دوست ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس، ڈیولپرز، بلڈرز جو آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے ہیں وقت نکال کے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، یہ پرائم منسٹر کا جو کنسٹرکشن کا پیکج ہے اس کے بارے میں بہت ساری بات ہوئی ہے۔ ہم نے اس میں اپنا رول پلے کیا اس کی فارمیشن کے اندر، جس وقت یہ پیکج تیار ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی، اور تھینکس ٹو میں کہتا ہوں کووڈ-19 کے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بولڈ ڈیسیژن لیا، گو کہ ایف اے ٹی ایف کا بھی اور باقی آئی ایم ایف کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا پیکج دیا کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو۔ اب اس کنسٹرکشن کی جو پیکج ہے اس میں 14 ویکس رہ گئی ہیں کمپلیٹ، دسمبر میں اس نے اینڈ ہونا ہے اور ہمارے پاس 14 ویکس ہیں۔ وی ڈاؤٹ ایز اے بزنس کمیونٹی، ایز اے بلڈر، کہ ہمیں جتنی اپروول کی مشکلات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اپریل میں جو ڈی وی سی ہوئی تھی سی ڈی اے میں، اپریل کی ڈی وی سی کے اندر جو پروجیکٹ پریلیمنری اپروو ہوئے تھے آج تک وہ فائنل اپروول ہو کے کنسٹرکشن کے فیز میں نہیں جا سکے۔ اپروول ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے دن ایک بہت لمبی لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے ریکوائرمنٹس مزید پوری کرنی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پیکج اگر 14 ویک رہ گئے ہیں، اگر اپروولز نہیں ہوئی، نہ لے آؤٹ پلان اپروو کرتی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، نہ بلڈنگ پلان اپروو کرتی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، جب سی ڈی اے تھرڈ پارٹی کے ذریعے اپروو کرواتا ہے انجینئرنگ ڈیزائن، جتنے لے آؤٹ پلان جو انجینئرنگ ڈیزائن ہے وہ تھرڈ پارٹی اپروو کرتی ہے، ویٹ کرتی ہے، وہ سی ڈی اے میں جمع کراتی ہے اور سی ڈی اے اپروو کرتا ہے، تو سی ڈی اے کے میں ایسی کون سی قابلیت ہے کہ یہ جو ہزاروں نقشہ جات ہیں گھروں کے، بلڈنگز کے، لے آؤٹ پلان کے، 7 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک ڈائریکٹر ہے، 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، 2-4 وہاں کے لوگ ہیں، ان کو نقشہ جمع کروائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹاف بھی دیں ساتھ تاکہ ہم ان فائلوں کو پروسیس بھی کر سکیں۔ تو اگر ایل ڈی اے لاہور کے اندر یہ پروسیس ہو رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی ویٹ کر رہی ہے، وہ آرکیٹیکٹس کے 10 12 15 لوگ 20 لوگ 25 لوگوں کی ایک ٹیم ہے، ان سے آپ اکارڈنگ ٹو بلڈنگ بائی لاز بلڈنگ کے نقشے بنوائیں اور پھر وہ نقشے ایز اٹ از اپروو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو بلڈنگ بائی لاز، تو کیا وہی والا ماڈل اس سی ڈی اے کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ صرف تنگ کرنے کا بہانہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کو چیئرمین سی ڈی اے سے ملنا ہو تو میں 5 منٹ کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کو ڈائریکٹر بلڈنگ جو ہمارا ممبر پلاننگ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، ان سے ملنا ہو تو 2 منٹ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ کیا لے کے دے سکتا ہوں۔ وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ آپ واک ان کرتے ان کے پاس چلے جائیں۔
मेंबर स्टेट से मिलना हो तो 3.5 मिनट में वॉक इन करते चले जाए, लेकिन इन डायरेक्टर से मिलना हो अगर जो सीडीए में जिनके दफ्तरों पे 2018 के 2019 के नक्शों टेबलों से भरे पड़े हैं, अगर उनको 6 महीने भी मैं आपको टाइम नहीं लेके दे सकता तो कहां प्राइम मिनिस्टर का पैकेज ये कामयाब होगा? कौन कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो है वो सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको ट्रांसलेट करना है हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने, और यहाँ पे वही ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वही फैसल नहीं बैठा है, वही खालिद आसिफ बैठा है, वही डायरेक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने खुदा की कसम खाई है कि लोगों के काम नहीं करने। अपने ऑक्शन में प्लॉट देते हैं ये, उन ऑक्शन के प्लॉटों के साल साल ये नक्शे अप्रूव नहीं करते। मुझे ये बताएं कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसका क्या कसूर है? वो सीडीए की ऑक्शन में अरबों रुपए के प्लॉट भी खरीदे, प्लॉट खरीदने के बाद हाथ बांध के इनके पास जाए, नक्शे जमा कराए, ये ना यूटिलिटीज उसको प्रोवाइड करते हैं, ना टाइम पे नक्शे अप्रूव करते हैं, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो है वो आप मुझे बताएं सक्सेसफुल होगा? मेरी तजवीज ये है, हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस बनना चाहिए। बेशक नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल हैदर की सरबराही में और उसके अंदर स्टेक होल्डर शामिल हों जो फोर्टनाइटली इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करे कि आपके पास इतने लेआउट प्लान जमा हुए थे उसमें से कितने अप्रूव हुए हैं, इतने बिल्डिंग के प्लान हाई राइज के जमा हुए थे ये कितने अप्रूव हुए हैं, आपने कितने अप्रूव किए हैं। ये बातें हम सुनते सुनते हमने 4 महीने गुजार दिए, 14 हफ्ते टोटल रह गए हैं, 14 वीक्स। मैंने चेयरमैन सीडीए साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट ये ईद से कोई 2-4 दिन पहले मीटिंग में कि ये आपका स्टाफ आपके सामने बैठा है, इनसे पूछ के दे दें कि इन्होंने कमर्शियल हाई राइज या डेवलपर के कितने नक्शे अप्रूव किए हैं। अगर ये कह दे कि हमने 4 किए हैं, 5 किए हैं, तो हम कहेंगे ये बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा जीरो हो तो फिर आप क्या कहते हैं कि इन्होंने कोई काम किया? और ये इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो इनके अंदर वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है कि जिसकी वजह से ये काम कर सकें। ये सिर्फ फाइलें रोकते हैं, ये फाइलें रख के बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कोई मनोसलवा उतरे, कोई खिदमत करे और फिर हम जाके तो इसको किसी तरीके से कामयाब करें। ये डेवलपर लोग हैं, 10-10 साल इनको लग जाते हैं अपने नक्शे अप्रूव कराने के लिए। सीडीए को खुद E11 में 35 साल हो गए हैं, E12 में 35 साल पहले सरकारी मुलाजमीन को और लोगों को प्लॉट अलाट किए थे जो रिटायर्ड हुए थे 55 साल की उम्र में। आज 85 साल की उम्र में उनमें से तकरीबन अगर 5,500 थे तो 3,000 फौत होके अगले जहान में चले गए हैं, लेकिन उनकी औलाद कोई तीसरी जनरेशन को भी अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि क्या उनको पोजीशन मिलेगा। खुद आप 35 साल में एक सेक्टर डेवलप नहीं करते। ये प्राइवेट बिल्डर है, ये प्राइवेट डेवलपर है, ये 4 से 5 साल के अंदर जमीन भी खरीदते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं और आपको लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर भी करते हैं। आपके जिम्मे सिर्फ एक काम है, आपने अप्रूवल देनी है। आप वो अप्रूवल नहीं दे सकते, आप इतने कोड़े हैं कि आपसे अप्रूवल नहीं दी जाती। ईज टू बिजनेस, ईज टू बिजनेस, ईज टू बिजनेस, कहां से आया ईज टू बिजनेस? आप ये अभी चेयरमैन साहब चेयरमैन सीडीए से मीटिंग करके आए हैं, मुझे ये बताइए कि हम मीटिंगें फिर मीटिंग्स हम काम किस वक्त करेंगे? एक हफ्ता गुजरता है फिर अगले हफ्ते की मीटिंग तय हो जाती है। भाई मीटिंग्स अली अवान साहब ने मेहनत की, कोशिश की, असद उमर, सब लोगों ने, ये किसी के बस के नहीं है ये इदारे। मैं कहता हूं कि इनको खत्म कर दे, एक थर्ड पार्टी से आप वेट करवाएं, सिर्फ थर्ड पार्टी। अगर इंजीनियरिंग डिजाइन आप एक्सेप्ट करते हैं थर्ड पार्टी का, तो नक्शा क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आपके पास कैपेसिटी नहीं है जब काम करने की। सर ये अब टॉप सिटी है, यहाँ पे मेरे ख्याल में 100 के हिसाब से नक्शे आरडीए में जमा होते होंगे, 100 के हिसाब से। अब सीडीए है, सीडीए में इस वक्त तक टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट जिनके नक्शे अप्रूव घरों के हुए वो 3400 प्लॉट हुए। तो क्या जोन 2 के अंदर खाली 3400 घर बने हैं? तरनौल में चले जाए, रोजाना एक 500 घर शुरू होता है, कंप्लीट होता है,
प्लाजा शुरू होता है, कंप्लीट होता है, ना उसको एनओसी की जरूरत, ना उसने किसी से पूछना, ना सीडीए के मुंह लगना, उसने जाके बना के बेहतरीन खूबसूरत प्लाजे खड़े। उनका क्या कर लिया आपने सीडीए ने? वो तो आपकी सरबराही में बनाए उन्होंने, आपने पैसे खाए हैं उनसे, तो फिर उन्होंने मेन डबल रोडों के ऊपर इतने बड़े बड़े कमर्शियल बना लिए। तो किसको तकलीफ किसको देनी है? वो डेवलपर जिसने 40 फुट की सड़क भी छोड़नी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, आपको स्ट्रीट लाइट्स भी देने हैं, इतने खूबसूरत पार्क्स भी बनाने हैं, इतना खूबसूरत ग्राउंड भी देने हैं, ये नहीं बना सकते। वो बना सकते तरनौल के अंदर 20 फुट की गली, 10 फुट की गली, छोड़े न छोड़े जो मर्जी करें, उनको न पूछने वाला कोई है, न रोकने वाला कोई है। तो हमें, मैं आपसे, देखिए जो चैम्बर है इसको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, क्योंकि ये जो चैम्बर्स हैं इसमें जो सारी बिजनेस कम्युनिटी है, सारे टैक्स पेयर लोग हैं, आपके पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आपने हमारे साथ मिलके ये चीज रियलाइज करवानी है कि 14 वीक्स रह गए हैं, ये काउंट डाउन शुरू करें, हर जगह ये बात करनी शुरू करें कि 15 वीक रह गए, 14 वीक रह गए, 13 वीक रह गए, कितनी अप्रूवल्स हुई, ताकि ये प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो इतनी मुश्किल से आया है वो कामयाब हो और आप सब लोग भले फूले। मैं तो कहता हूँ जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, इनमें रियल एस्टेट वाले लोगों को भी और अच्छे डेवलपर्स को भी ये इनाम दे रहे हैं और ये उनको अवार्ड्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये होता है ऑनर, इनको इस तरह का ऑनर मिलना चाहिए इन डेवलपर्स को, इन टॉप सिटी वालों को, इन मुमताज सिटी वालों को, इन B17 वालों को, F17 वालों को, फैसल टाउन वालों को, तमाम अच्छे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, इनको इनामात मिलने चाहिए। इनकी आप ये रोजगार भी मुहैया कर रहे हैं। मेरी बात लंबी होगी, आप तमाम दोस्त मेरे ख्याल से खाने का भी इंतजार कर रहे होंगे, तो लेकिन ये है कि आप, ये इतना बड़ा फोरम था और आप इतने इम्पोर्टेंट लोग थे, अगर हम आपके साथ ये बातें शेयर नहीं करेंगे, मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डेफिनेटली आप जाके शेयर करेंगे। हमारी ये जो वॉइस है, हम जो ये जो बात है, ये आप समझ लें कि ये हॉर्सेस माउथ से हम बात कर रहे हैं, कि वो हम जो रियल टाइम इफेक्टिव्स हैं हम वो बात कर रहे हैं। तो इस बात की बड़ी अहमियत है। मैं आप तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े पेशेंस से मेरी गुफ्तगू भी सुनी, इतना खूबसूरत फंक्शन भी अटेंड किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जाहिद रफीक साहब का और इनके साथ जिन तमाम लोगों ने, डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने मिल के ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इन ऑर्गेनाइजर्स को भी, टॉप सिटी की मैनेजमेंट को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे। थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलाग।